recording? Yes. Yes. So coming back to the point, when you are creating a blog, let's suppose this is a blog here, this is a personal blog, you can decide the topic and focus on that topic for significant amount of time, and then you can change it. So few of the suggestions for this particular blog. First, you can add, you can produce content in categories. Again, whenever you are sharing blog is all this a blog or information is the information publishing. You are in the information publishing industry, so you have to produce information in the in a section wise, like जैसे again I will take the example of जब भी blogging आप कर रहे हो तो आप किसी मैगजीन को और न्यूज़पेपर को ध्यान में रख के करो. So न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या होता है, you have a separate dedicated space for a particular topic. स्पोर्ट्स का अलग पेज है, पॉलिटिक्स का अलग पेज है, एडिटोरियल का अलग पेज है, एंटरटेनमेंट का अलग पेज है. So in the same way, even if you are talking about coding or programming or web technology, you must have some category. Yes or no? कोई भी आप टॉपिक उठा लो, हर टॉपिक में कुछ सब कैटेगरीज होंगे या नहीं होंगे? Yes, it will. Yes, ma'am. Yes. So initially it may be not very like initially बहुत सा थोड़ा chaotic category बनेगा. It's perfectly fine. Over a period of time you can refine it for better. But शुरू में आप category के साथ ही काम करेंगे. Second feedback is you have to organize the content in the category. Third is all your blog post is your blog post URL is not friendly. So can you see that all the URL is, let me see this URL. Can you see that URL is equal to question mark, P is equal to 665. Is this the right URL? Is this the right user Google friendly or user friendly URL? No, it's not it's not user friendly URL. So whenever you are producing a blog post or whenever you are creating any URL, this is called URL. So URL जो होना चाहिए वो user friendly, Google friendly होना है. उसके लिए आप क्या करोगे? You remember WordPress में there is a section called settings, और settings के अंदर permalink है. Settings के अंदर कहाँ जाओगे आप? Permalink. How many of you remember permalink? कितने लोगों को याद है permalink? So there you can go and change the permalink to the post name. वहाँ पे आप settings में जाके permalink को आप change कर दोगे post name. So what that setting will do कि whatever is the post title you are giving, जो कुछ भी आप post title डाल रहे हैं, वही title वो आपका blog का URL बना देगा. Means that will become padarshippriya.com / namespace and using statement in C++. This will become your part of the URL. So that way you need not to worry about whether you are creating a user-friendly or URL or not. In any way, आप टाइटल तो मीनिंगफुल डालने ही वाले हो, तो टाइटल यूआरएल में चला जाएगा तो मीनिंगफुल यूआरएल ऑटोमेटिक बन जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द ब्लॉग का जो सेटिंग होता है, डू यू रिमेंबर द ब्लॉग सेटिंग? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल द ब्लॉग सेटिंग? लेट मी शो यू प्रैक्टिकली. इफ यू रिमेंबर द ब्लॉग सेटिंग, ब्लॉग पोस्ट का जो पोस्ट लेवल पे सेटिंग होता है, हर पोस्ट की जो सेटिंग होती है, उस सेटिंग्स में देयर इज एन ऑप्शन टू रीनेम द यूआरएल. आप वहां पे यूआरएल को रीनेम कर सकते हैं. तो इवन लेट्स सपोज यू बाय डिफॉल्ट आपने पोस्ट नेम डाल दिया, तो पोस्ट नेम आप ये जो पूरा का पूरा यूआरएल में आ गया. नाउ यू वांट इट कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए. नेम एंड द यूजिंग ऑफ स्टेटमेंट इन C++. So this should be the only part of the URL. So in that case you can go and remove the rest of the part. तो इसको आप एक बाय डिफॉल्ट अगर रखेंगे तो टाइटल आपका यूआरएल में चला जाएगा. आप जो डिफॉल्ट है उसको भी एडिट करके और शॉर्ट और मीनिंगफुल बना सकते हैं. So for that you have to every single post की जो सेटिंग होती है उसमें आपको URL चेंज करना होगा. Got the idea? And this is for everyone. Whoever is producing a blog, are you finding this useful? Yes. So practically too, I will show you in one of the blog post here. Apart from that, what else you can do? See, every single blog post must conclude with call to action. हर पूरे वेबसाइट का जो पर्पस है वो कहीं ना कोई एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए.
So what is your end objective? Let's suppose you are not providing any product, you are not providing any services, you are not monetizing it. Even how you can like make पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन का पर्पस जो है, कॉपी राइटिंग जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसका पर्पस होना चाहिए कि आपका यूजर जो है वो एक्शन लेने के लिए ट्रिगर हो जाए। ब्लॉग पोस्ट का मतलब होता है या ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो या कॉपी राइटिंग जो वेब पे आप कॉपी राइटिंग लिख रहे हैं, सो योर कॉपी राइटिंग का अप्रोच, पूरा का पूरा अप्रोच ये होना है कि आपका यूजर और रीडर और ऑडियंस जो है वो आफ्टर कंज्यूमिंग द कंटेंट दे शुड बी रेडी टू टेक सम एक्शन। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट एक्शन यू वांट देम टू टेक। अगर प्रोडक्ट है तो आप in general we always want them to act on our lead magnet। तो हमारा लीड मैग्नेट फ्री वेबिनार आप ले लो या फ्री ई बुक डाउनलोड कर लो या गाइड डाउनलोड कर लो या फ्री 1-to-1 कंसल्टेंसी ले लो या फ्री गाइडेंस ले लो या मेरे दैट कैन बी द लीड मैग्नेट। But for you, when you are not providing right now any services, you can start with to subscribe your, you can encourage your reader to subscribe to your blog. So you at the end of every blog post come up with some call to action. So what action you want to trigger in your audience? It might be कि आप जो chapter 1, chapter 2, chapter 3 लिख रहे हो साथ में उसका एक PDF तैयार कर दो, और you can ask them कि okay you can download the entire book। एंड अभी ये ब्लॉग पोस्ट जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट एक चैप्टर है, लेकिन अगर वो PDF और डाउनलोड करता है तो पूरा सारे चैप्टर्स उसको एक ई बुक्स के तौर पे या गाइड्स के तौर पे मिल जाए। तो हियर यू कैन, योर कॉल टू एक्शन कैन बी download the complete ebook on C++ or something like that, right? To download complete ebook, so that way see the future is all about the community building। future is all about कि आपके पास कितना बड़ा ऑडियंस है। तो अभी आप अगर अपना ऑडियंस बिल्ड करना शुरू करोगे 2 months 3 months 6 months जब तक आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है, लेट्स सपोज यू हैव 1000 ऑडियंस, उसके बाद अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग विद कि आई विल प्रोवाइड 1-to-1 कंसल्टेंसी like you may say 10 rupees per minute or 1000 rupees per hour or something like that। So in that case you have ready to consume customer। आप उनको एक बार ब्रॉडकास्ट करोगे, 1000 लोगों के पास बताओगे, 1000 लोग जो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, they you have already built your authority। तो आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो यू हैव द रेडी टू कंज्यूम कस्टमर। वहां पे तुरंत आप एक्शन लेने वाले, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किसको देना है, आपके पास शुरुआत में ही रेडी टू यूज कस्टमर्स होंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है तो भी आप सब्सक्राइबर बेस बनाने के लिए या ईमेल की लिस्ट बिल्ड करने के लिए या एक टेलीग्राम ग्रुप बना करके वहां पे लोगों को ज्वाइन करने के लिए आप बोलो, या व्हाट्सएप ग्रुप बना करके वहां पे लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलो, ताकि इससे और भी फायदा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट डालोगे तो नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है गूगल में तो आपको फायदा होगा कि आप नया नया कंटेंट डाल रहे हो तो गूगल में उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब भी कोई नया ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो तो जैसे आप मुझे शेयर करते हो वैसे उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। उस ग्रुप में जैसे शेयर करोगे तो अभी आपने ब्लॉग प्रोड्यूस किया और अगले 1 घंटे के अंदर 10, 20, 50, 100 जितने भी उस ग्रुप में लोग हैं और वो आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो आपके ब्लॉग की व्यूज अचानक से बढ़ जाएगी। मतलब अभी नया नया ब्लॉग आपने नया कंटेंट किस इंटरनेट पे डाला है और डालते के साथ 20 व्यू मिल गए, और जितने एल्गोरिदम है, गूगल का एल्गोरिदम हो या कोई भी एल्गोरिदम हो, दे लुक फॉर दोस काइंड ऑफ कंटेंट। इसी को कहते हैं वायरेबिलिटी फैक्टर। ऐसे ही लोग डालते हैं, जैसे कंटेंट प्रोड्यूस हुआ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, if number of views, like, comment, share, any user action is drastically high, that content is called viral content। तो सबसे जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको कंटेंट के गूगल में विजिबिलिटी का या किसी एल्गोरिदम में तुरंत उसको कैच कर लेना है कि जब आप नया इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो कितने लोग उसको इमीडिएटली कंज्यूम करते हैं। तो आपके पास एक रेडी टू यूज यूजर बेस है, कोई कम्युनिटी है, कोई फेसबुक ग्रुप है, कोई भी एक प्लेस डिसाइड कर लो, फेसबुक ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप ग्रुप में फैंटास्टिक है, लेकिन बस उसका एक लिमिटेशन है कि 256 के बाद आपको नया ग्रुप बनाना पड़ता है। टेलीग्राम ग्रुप बना लो या कहीं पे ईमेल की लिस्ट बना लो, ताकि जब भी नया पीस ऑफ कंटेंट आप प्रोड्यूस करो, तो जैसे आप मुझे आई रिमेंबर यू शेयर फ्यू पोस्ट ऑन माय व्हाट्सएप, तो उसी तरह आप उस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, तो उनको भी फायदा होगा और आपको रेडी तुरंत नंबर ऑफ व्यूज मिल जाएंगे। नंबर ऑफ व्यूज जैसे ही ज्यादा मिलेगी
उस ब्लॉग पोस्ट की विजिबिलिटी जो है गूगल में ऑटोमेटिक बहुत बेटर होगी, राइट? गॉट द आइडिया? Enough to work upon the blog. And last one more thing, your blog should be visible somewhere. यहाँ पे जैसे होम अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट है, वैसे ब्लॉग भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखना चाहिए. And that call to action, the main call to action of your website is missing. So here I want to share one more thing. Pardarshi has shared with me. She has created this website and she want to provide this services to people who is looking for to create a portfolio website. जैसे website इसने बनाई है, इस तरह की website अगर किसी को बनानी है, तो you can approach Pardarshi. Is this Pardarshi you are asking for? यही आप पूछ रहे थे मेरे से? Are you there? Yes, ma'am. Yes, yes. So this is for the rest of the audience. If someone want to create a portfolio website in your, if anyone want to create a portfolio website, she can approach Pardarshi and she will help you to create this kind of 5, 10, 20 page blog website or portfolio website. Right. So Pardarshi, how much you will charge for this? So that she will give better idea, but right now she is like she has stated this. It is a second or third website, and I'm really impressed with her interest and her kind of work she is doing. So she can start with very nominal charges, isn't it? Pardarshi? हाँ, मतलब आप इस ग्रुप के लिए तो बहुत you should be very, like initially you are also going to get the experience of different things. So we will start with a very nominal one, right? हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में यही बहुत as she has more work and less time, obviously she has the option of charging better. There is a lot of work, man. Right. Yeah, that's why I said कि she has the IT background, engineering कर रहे हो, इतना अच्छा website बना रहे हो. Then she asked me कि okay, I want to do it. तो मैंने ऐसे कि that's so many people are asking me कि मुझे बनवाना है, मैम आप बना दो. मेरे पास time नहीं है, तो I can guide you, I can direct them to. So this is one of the thing I wanted to share. And Pardarshi, you have made a note. You can work on that. Yes, ma'am. One more thing here, social media sharing is missing. Means, let's suppose you have this blog post, and I like this content very much. Let's suppose I like this content very much. I want to share it on my Facebook, or I want to share it on my WhatsApp or somewhere. I want to share this content on my social media. So one more thing, you can add a social sharing button here. So this is a very, either जो थीम आप शेयर कर रहे होंगे उसी थीम में आप देखना होगा ऑप्शन. अगर उस थीम में नहीं है तो कोई प्लगइन इंस्टॉल करके आप इसमें सोशल शेयर का ऑप्शन ऐड कर देना. और सोशल शेयर में और बहुत ज्यादा नहीं भी कर पाओ तो व्हाट्सएप और फेसबुक, लिंक्डइन 2-3 तो कर ही देना. Okay, ma'am. Right? And one more thing here you can keep in mind. आप हमेशा एक जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनका एक मॉडल आप हमेशा याद रखना. They create once and they promote endlessly. पार्ले जी बिस्किट बनाया एक बार, उन्होंने एक बार एक फॉर्मूला बनाया कि पार्ले जी बिस्किट कैसे बनता है, एक बार फैक्ट्री सेटअप किया और बस एक ही स्ट्रक्चर में वो पार्ले जी बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ द टाइम वो क्या कर रहे हैं? Rest of the time they are producing, distributing and promoting, right? So in the same way, जैसे कि आपने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया, ये आपका वन टाइम पार्ले जी बिस्किट है. अब इसको बना के छोड़ नहीं देना है, इसको मिनिमम 20 प्लेसेस पे आपको पोस्ट करना है. मिनिमम 20 प्लेसेस. आप बताओगे वो 20 प्लेसेस कहाँ हो सकते हैं? तो गो एंड आइडेंटिफाई 20 व्हाट्सएप ग्रुप, 20 नॉट व्हाट्सएप ग्रुप तो आप अपना खुद ही बनाओगे. एटलीस्ट 20 रिलेवेंट फेसबुक ग्रुप और 20 रिलेवेंट लिंक्डइन ग्रुप. इसी दोनों प्लेसेस पे आप जाओ और दोनों जगह या तो 10-10 या 20-20 ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और उस ग्रुप में ये कंटेंट को शेयर करोगे. राइट? इज इट मेकिंग सेंस? You can unmute. जिनके भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, you can unmute. Sorry, you can mute them. I'm just muting all of you. So this is for everyone. Whenever you are creating a piece of content, you have created one.
but the real result is going to come when you are going to distribute it, promote it at different places. So where to start with? Go and identify 10 relevant Facebook group and 10 relevant WhatsApp group. 10 relevant Facebook group and 10 relevant LinkedIn group. उसको आप join करो, and while sharing it, let's suppose you are sharing this content, so you can just share, copy this link and share it there, and you can introduce this entire piece of content in 1 line or 2 line. So are you struggling with the namespace and are you struggling with C++? This blog post can help you understand it better, and give the link. And when you are giving the link, you can obviously they will come to your blog post, and your views will increase. If you have sent some call to action, let's suppose you want them to download your ebooks or download your join your Telegram group, there that call to action you can also add. But जहां कहीं पे भी आप इस blog post को share करेंगे, 1 या 2 लाइन का intro भी आप देंगे कि how this blog post is going to help them, and वो intro 1 या 2 लाइन का दे करके तब ये link डालेंगे. तो रियल जो रिजल्ट आने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रमोशन से आने वाला है. शुरू में ये काम ज्यादा करना पड़ेगा. जैसे जैसे आपके ऑडियंस बिल्ड हो जाएंगे, लेट्स सपोज 100, 200, 500 का आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, तो फिर आप एक बार प्रोड्यूस करोगे, कम से कम 10, 20, 50 व्यूज तो वहां से आ जाएंगे. राइट, गॉट दिस स्ट्रक्चर? यस मैम. ओके, नाइस. आई थिंक आज के लिए बहुत है, इतना पे आप करो, काम करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे. Now I'm moving to some other website, some other questions. Can I take some questions? Other questions? और क्या क्या क्वेश्चन है? मैम मेरी वेबसाइट देख लीजिए. हाँ, just have you shared the URL? Please share the URL one आज time. शेयर किया मैंने URL. नहीं, एक्चुअली मैंने नया डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है ना, तो वो अच्छा दोबारा चैट जो है वो मिल गई. Yeah, you were asking me, I think you are asking me something कि I want to create a education website. Is it so? मैम ये तो बात की बात है. पहले जो मैंने साइट बनाई है उसके ऊपर में जो आपने पिछले ये मैंने ये एक दफा इसको देख लीजिए कि ये जो होम पेज है और इसके बाद जो मैंने अबाउट अस पेज बनाया है. इस अबाउट अस पेज के अंदर में जो विजन है, वो विजन का जो ये राइट पोर्शन, ये कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करो यहाँ पर. तो चेंज द बैकग्राउंड है. यहाँ पर जो इस पेज का फीचर्ड, इस पेज का जो इमेज है, उस इमेज को आप चेंज कर दो. अच्छा, वो कैसे क्या होता है? आप उस पेज पे जाएंगे, उस पेज का जो हेडर इमेजेस होगा, उस किसी भी पेज का स्ट्रक्चर होता है. इफ यू विल गो एंड एडिट द पेज, तो उस पेज का स्ट्रक्चर होता है, राइट. उसमें एक सेक्शन जो ऊपर का इमेज वाला सेक्शन है, दैट आइदर यू कैन रिमूव एट ऑल और यू कैन चेंज इट. ओके, सो कैन यू शो द यूजर आईडी पासवर्ड? आई विल शो यू राइट नाउ. ऑल दीज आर द ब्लॉक्स ऑन योर पेज, राइट. सब कुछ ये सारा का सारा ब्लॉक ही तो आपके पेज का है. हर एक ब्लॉक को आपको एडिट करना है. तो ये जो इमेज वाला ब्लॉक है, उसको या तो आप चेंज कर देंगे या रिमूव कर देंगे या दूसरा इमेज डाल सकते हैं. You are editing it using what? Like Elementor. Elementor में से तो आराम से हो जाएगा. Even you can change the color. इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं. Can you see that? ये कलर रखने से ज्यादा विजिबल है. हाँ, ये चाहिए. हाँ, तो उसके लिए फिर आपको इसका कलर कोड, जो जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया और जो कलर आ रहा है, एग्जैक्टली उसका कलर कोड क्या हो सकता है. कलर कोड अगर पता हो तो सिंपली आप उस कलर कोड को डाल करके बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हैं. So here you can also inspect element. Inspect element. ये आपका एक्चुअल कोडिंग. इस कोडिंग में आप जाके कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें जाने की जरूरत नहीं है. वैसे बहुत बार जब कोडिंग में आप जाते हो तो वहां पे आपको कलर, एग्जैक्ट कलर का कोड मिल जाता है और उसी कलर को आप यूज कर सकते हो. लेकिन इस कोडिंग को समझना, जैसे फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है, फॉन्ट वेट क्या है, मार्जिन, आउटलाइन, पैडिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट, बॉक्स साइजिंग, तो अगर थोड़ा बहुत
कोडिंग को समझना चाहते हैं तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसके अभी करंट कोडिंग को आप समझ, नॉट ओनली दैट, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे चेंजेस करके आप देख भी सकते हैं कि वो चेंज होने पे कैसा लग रहा है. If you are happy with that changes, then you can do the similar kind of changes in your website, but that will little bit incline towards the coding, so I don't want to confuse you with that coding. अभी कोडिंग में आप नहीं जाओ तो ज्यादा बेटर है. अभी केवल आप इसके जो ब्लॉक एडिटिंग है, जो ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये जो आपका हेडर इमेज का जो ब्लॉक है, उस हेडर इमेज के ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करो. Right, coding wala part, if you want I can like Padarshi take initiatives, she can. नहीं, मैं अभी कोडिंग में नहीं एंटर करना चाहूंगा. तो आप जो जितने ब्लॉक्स हैं ना, जैसे आप, आई रिमेम्बर कि आपने सारा कुछ ब्लॉक अगर एलिमेंटोर से किया होगा तो सारे अलग अलग ब्लॉक्स होंगे. तो यू हैव टू गो एंड फाइंड द हेडर इमेजेस ब्लॉक, हेडर इमेज का ब्लॉक आइडेंटिफाई करके उस ब्लॉक को या तो व्हाइट कर दें या कलर चेंज कर दें या इमेज ही चेंज कर दें. दैट इज राइट. व्हाट एल्स? अच्छा, एक तो मैंने आपको अपना वो दे दिया, क्या ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड. ओके. अच्छा, दूसरा अभी आपने मेरे को ये आपने एक क्वेश्चन दिया है कि हमें इमेज ऐड करनी है, वो मैं वर्किंग करूंगा. और एक आपने बोला है कि मेरे को अपनी जो ये नेम्स नहीं चेंज हुए मेरे से. ये जो है अभी भी एलिमेंटर के नंबर ही आ रहे हैं, वो नंबर आते नहीं है. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग. ब्लॉग जब खोलेंगे, हाँ, ब्लॉग वाला खोलें जरा, मेरा ब्लॉग पेज खोलें. दिस इज योर ब्लॉग. ये और नीचे जो दो ब्लॉक्स हैं वो नंबर ही आ रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर पाया मैंने उसको. ये नीचे वाला और इसे नीचे. Okay. Are you talking about this one? Here your name is perfectly fine. आपका ब्लॉग पोस्ट का नेम सही जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, ये तो आपने किया था इसलिए सही जा रहा है. अच्छा, आप जो कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा. हाँ. So I will show you how to do that. So your blog post and ये बात तो सही यार. आपको पेज का टाइटल, जो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वो चेंज करेंगे. जो आपका ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वो ये जो है एलिमेंटर 504, हाँ, इसको अगर मैं कवर करता हूँ तो ये टाइटल में कन्वर्ट नहीं होता है ये. ओके, सो लेट मी शो यू. मेरे आपके मॉनिटर पर कन्वर्ट हो रहा था, मेरे पे नहीं हो रहा है. तो आपको पेज का टाइटल चेंज करना है. मैं लॉगिन कर रही हूँ और ये चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ. और क्या क्या कंसर्न है आप बताते जाओ, ताकि अभी जस्ट एज इट विल ओपन आई विल शो यू. दोनों है ना, 489 और 504, ये चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं. अच्छा, दूसरा इसके अंदर में जैसे मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला है तो इसका लिंक मैंने सोशल मीडिया तो उठाया था. अभी यहाँ से बैक टू सोशल मीडिया कैसे कनेक्ट करूंगा? नहीं, आप एक तो लिंक शेयर करने का एक कॉपी यहाँ पे है, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे. दूसरा व्हाट आई हैव आस्क्ड यू कि यहीं पे या तो फुटर एंड ऑफ द ब्लॉग पोस्ट या तो स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग पोस्ट या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में कहीं पे भी आप सोशल शेयर का बटन डालेंगे. सोशल शेयर का बटन कैसे डालेंगे? या तो आपकी जो थीम आपने लिया है उसमें सोशल शेयर का ऑप्शन होगा, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई प्लगइन आप डालेंगे. दैट आई विल शो यू. तो उससे क्या होगा ना, यहीं पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वाले सारे शेयरिंग के ऑप्शन आ जाएंगे और पीपल कैन क्लिक देयर एंड शेयर दिस यूआरएल टू देयर फेसबुक. सपोज मुझे ये कंटेंट बहुत पसंद आया और मैं शेयर करना चाहती हूँ कहीं पे, तो आई कैन क्लिक ऑन हियर फेसबुक, तो मेरा फेसबुक खुलेगा और आपका पेज शेयर होगा उसमें. सो दैट आई हैव आस्क्ड कि जितने ब्लॉग पोस्ट हैं उस ब्लॉग पोस्ट के साथ आपका शेयर का ऑप्शन, सोशल शेयर का बटन भी आप डालेंगे. वो कैसे करते हैं? वो आपके थीम में ही होगा. आई विल सी कि अगर थीम में है तो थीम से डालेंगे, नहीं है तो सोशल शेयर का प्लगइन डालेंगे. अभी मैं बता देती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इमेज मिसिंग है. उसके अलावा इमेज का वर्किंग करूंगा. हाँ, उसके अलावा जैसे आपने 5-6 पॉइंटर्स डाले. अब ये पूरा का पूरा रनिंग टेक्स्ट है.
So what you can do, we can make it a small heading. जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना step 1, step 2, step 3, तो फिर भी समझ में आ रहा है चलो steps है। उसी तरह यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स हैं उनका भी आप एक छोटा सा समरी हेडिंग में डाल सकते हैं। सपोज ask from the builder a copy for master file, हाँ तो ये एक बोल्ड कर दिया। अप्लाई टू टेक लोन फ्रॉम द रेप्यूटेड बैंक, ये इसको बोल्ड कर दिया। आस्क फॉर द प्रॉपर सेल्स एग्रीमेंट, इसको बोल्ड कर दिया। तो उससे क्या होगा, कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे बाकी मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, स्टेप 1 में दैट जो बोल्ड में उसको मैं पढ़ पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो एवरी पैराग्राफ या एवरी बुलेट पॉइंट जहाँ पे भी लंबा था, मतलब अगर मोर देन 3 सेंटेंसेस हैं, तो उस 3 सेंटेंस को स्टार्टिंग करने के लिए आप एक बोल्ड में उसका पॉइंटर्स डाल सकते हैं। कर दूंगा। राइट, सो दैट विल हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरलिंकिंग, लेट्स सपोज यू हैव अ बाय योर फ्लैट, आपके इससे रिलेटेड आप इसको कहीं पे आपका फ्लैट का लिस्टिंग है, आपकी जो मेन वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन है जहाँ पे आपने पूरे फ्लैट की लिस्टिंग की हुई है। So there you can link from this text to the new text. This is Pardashi for you as well. This is called interlinking. कि आपके पेज के कंटेंट से आप ही के वेबसाइट का जो दूसरा इंटरनल पेजेस है उसको आप लिंक करेंगे। Right? Is it clear what I'm saying? For example, समझ लूंगा आपका। हाँ, आप इसको समझ लूंगा मैं। हाँ, what I'm saying, interlinking का मतलब है, आइडियली हम लोग क्या करते हैं, आइडियली एक व्हील का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। व्हील का स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब है कि सेंटर में हमारे कॉर्नर स्टोन पेजेस होते हैं। कॉर्नर स्टोन पेजेस का मतलब है कि हमारी वेबसाइट के जो मेन पेजेस, जैसे रेवेन्यू जनरेशन पेजेस है, जिस पेज इज अ रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज और फ्लैट लिस्टिंग पेजेस और प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेजेस, जो मेन आपकी वेबसाइट का कंटेंट है उसके लिए आपने कुछ पेजेस बनाए हुए हैं, तो वो आपके मेन पेजेस हैं। उसके पेरिफेरी में उसको सपोर्ट करने के लिए आप सारा ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, सारे FAQs कर रहे हैं, तो जितना भी पेरिफेरी में आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से लिंक आपको मेन पेज पे डालना है। तो अगर आपने बाय योर फ्लैट और आपके पास प्रॉपर्टी लिस्टिंग का, लेट्स सपोज दिस इज द वे यू आर लिस्टेड योर प्रॉपर्टीज, तो मान लीजिए ये लिस्टिंग है फॉर रेंट, फॉर सेल, फॉर रेंट, मतलब कहीं भी आपकी जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं, हाँ, इनका मैं क्या करूं जो आ रहे हैं बीच में? ये कौन से पेजेस? ये पेजेस ये तो सिंपली लिस्टिंग, ये पेज एक्स्ट्रा है, ये इसको मैं यूज नहीं कर रहा। नहीं, तो आप यही मैं बोल रही हूँ कि जो आपके मेन ये कॉर्नरस्टोन पेजेस हो सकते हैं, ये यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और आप ये जो 4 फॉर रेंट फॉर सेल है ना, उसको आप अपने अकॉर्डिंग 4 सेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, राइट। सो हियर इट कैन बी फॉर, लेट्स सपोज हियर योर कंटेंट इज, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बाय योर फ्लैट, तो एक सेक्शन क्या हो सकता है, बाय योर फ्लैट, और रेंट, फ्लैट फॉर रेंट, और फ्लैट फॉर इन्वेस्टमेंट, और फ्लैट फॉर न्यू जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन। तो ये 4 सेक्शन हो गए। तो इसको क्लिकेबल करके वहां पे जैसे बाय योर फ्लैट है या बाय अ फ्लैट है, तो उसमें सारे फ्लैट की लिस्टिंग आ गई। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लैट है उसकी लिस्टिंग आ गई, या नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लैट है, ये 4 मेन कैटेगरीज आपकी हो सकती हैं। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पेज है, जैसे अर्लियर प्रोजेक्ट, कहीं पे आपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करी हो, तो इस टेक्स्ट से उस पेज को लिंक कर देंगे। या बुकिंग, आपने अगर कहीं पे बुकिंग का कोई पेज बनाया हुआ है, तो इस कंटेंट से उसको लिंक कर देंगे। तो 100 वर्ड्स में एक लिंक आप डाल सकते हैं। मतलब अगर आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो 5 लिंक आप डालें तो ज्यादा बेटर है। तो 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक आप डाल सकते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा वेबसाइट जो है वो थीमेटिकली इंटरलिंक। उससे क्या होगा, इफ यू रिमेंबर, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है, वो 2 चीज पे डिपेंड करना है कि एक आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट खुल जाती है, दूसरी आपकी वेबसाइट पे लोग टाइम स्पेंड कितना कर रहे हैं। तो कितना टाइम स्पेंड करना है ये आपको एनालिटिक्स में जाके दिख जाएगा। एनालिटिक्स वाला वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, एनालिटिक्स में दिख जाएगा। लेकिन अगर टाइम स्पेंड को बढ़ाना है, इफ समवन इज ऑन योर वेबसाइट एंड यू वांट कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो उस केस में आपको इंटरलिंकिंग देनी पड़ेगी कि रिप्यूटेड बैंक, लेट्स सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ रिप्यूटेड बैंक, आपने, क्योंकि ये ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन में आप सारा सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो देयर इज अ पेज, देयर इज अ लिस्टिंग कॉल्ड रिप्यूटेड, लिस्ट ऑफ रिप्यूटेड बैंक।
तो वहां पे उस पेज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आप रिप्यूटेड बैंक का लिंक दे सकते हैं, कोई क्लिक करे और रिप्यूटेड बैंक पे चला जाए, राइट? Scrutiny of the project. Let's suppose you are providing the services, we will do scrutiny for you. We will give you the 101 pointers before finalizing the project, and you can check on those pointers, and we can do it on your behalf. Or you are asking some money, this is your core services, तो उस सर्विस पेज को यहाँ से लिंक दे सकते हैं. So that is primarily called interlinking. तो इंटरलिंकिंग आपके SEO यानी इस पेज की विजिबिलिटी, गूगल में विजिबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और आपके पेज की में टाइम स्पेंड को भी इंक्रीज करता है. अच्छा. जब भी कोई, बिकॉज ऑल दीज आर रजिस्ट्री पेपर्स, प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफ द फ्लैट. अब रजिस्ट्री ऑफ द फ्लैट्स का आपने कहीं कोई नया ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है, तो रजिस्ट्री ऑफ द फ्लैट्स को ये आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और वो लिंक डालने का ऑप्शन आता है, लिंक डाल देंगे ताकि कोई क्लिक करके रजिस्ट्री फॉर द फ्लैट पेज पे जाना चाहे तो वो जा सकता है, राइट? ठीक है, ठीक है. ये तो हो गया इंटरनल पेजेस का. और एक्सटर्नल पेजेस का भी लिंक डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की वेबसाइट है और कोई रेरा का कोई बहुत गाइडलाइंस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया है, या उस तरह का अगर कोई जो एक्सटर्नल वेबसाइट है, जो आपकी वेब पे कंटेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंटेंट है, वहां पे भी आप इसको क्लिक करके गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं. एक्सटर्नल लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हैं तो मेक श्योर यू आर गिविंग द वेरी अथॉरिटेटिव लिंक. डोंट गिव लिंक टू एनीवन और एनी, ऐसा नहीं कि किसी को भी लिंक दे देंगे. ठीक है. जो अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, जैसी .gov वेबसाइट से आप लिंक करते हैं, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अपने आप बढ़ने लग जाती है. तो अगर कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो GOV वेबसाइट पे है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसको अगर आपके पास रिलेवेंसी है एस्टैब्लिश करने की, तो मेक श्योर यू आर लिंकिंग योर मेन कंटेंट विद द रिलेवेंट गवर्नमेंट वेबसाइट कंटेंट. ओके. राइट? So that you can do, and I'm not able to log into your इसमें मैं लॉगिन नहीं कर पा रही. Is this the email ID is correct? हाँ जी. I don't know why it's not taking, it's giving error. The password you entered for the email address is incorrect. आपने टाइप किया है या कॉपी पेस्ट किया है? कॉपी पेस्ट किया था, मैं दोबारा करता हूँ. Are you able to log in? हाँ, मैं तो खोला हुआ है. Here, और बाकी लोगों के क्या क्या कंसर्न है, यू कैन आस्क. और क्या प्रोग्रेस है, क्या चैलेंजेस हैं? अच्छा मैम, इस पर अगर मैं कोई ये साइट बनाना चाहूँ फॉर एजुकेटिंग द न्यू पीपल बाय ट्राइंग टू बाय द हाउस, तो बना सकता हूँ? फिर क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल बना सकते हैं, प्रोसेस भी बहुत टफ नहीं है. बट एजुकेशन वेबसाइट बनाने से पहले आपको अपने अंदर एजुकेशन वेबसाइट किस क्या, आप अपना कोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट कैन बी एजुकेशन वेबसाइट. आप एक डिस्कशन फोरम प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां लोग आकर के क्वेश्चन आंसर्स आपस में डिस्कस करें, दैट कैन बी दैट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट. आप ब्लॉग पोस्ट, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ you are trying to educate your customer the one way you are already doing educating your client. So when you are saying education website, what is your vision, what is your what do you mean by education website? ऐसी कोई like inspiration website है जो आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ मुझे when I'm saying education website I mean to say that this one. अच्छा, ठीक है. तो उसकी क्लैरिटी करने, इफ यू आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज, सपोज यू आर प्रोवाइडिंग कि रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी बाय करने से पहले 1 घंटे का ये कोर्स कर लो, तो लाइक बैंक फाइनलाइज करने से पहले 1 घंटे का ये कोर्स कर लो, या प्रॉपर्टी का पेपर चेक करने के लिए ये कोर्स कर लो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट का रूल जानने के लिए ये कोर्स कर लो. तो प्रॉपर्टी के अंदर भी आप 10 कोर्सेज बना सकते हैं. जी, आप बना सकते हैं. तो वो जो अगर आपको अपना एजुकेशन कोर्स के फॉर्मेट में देना है, वो कोर्सेज आधे घंटे का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, राइट? तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है. कोर्सेज का जो अप्रोच है वो पूरा अलग एक स्ट्रक्चर होगा. दूसरा है
नहीं मतलब कोर्स बनाने का एक अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। अगर कोर्स ये हाँ जैसे 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हाफ एन आवर ईच का करते हैं। हाँ वही मैं बता रही हूँ कि आप जब कोर्स बनाएंगे तब आपको उसका जो अप्रोच होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरा एजुकेशन वेबसाइट जैसे कि डिस्कशन फोरम है, वहां पे आपने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टॉपिक पे एक एक सेक्शन बना दिया, और उस सेक्शन पे जितने टॉपिक उस पे डिस्कशन इज ओपन टू ऑल, एनीवन कैन कम एंड शेयर देयर नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। रजिस्ट्री पेपर्स जैसे फोरम है, फोरम में 5 टॉपिक्स हैं या 10 टॉपिक है, जो भी आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं उस कोर्सेज के बदले आपने उसमें टॉपिक बना दिया, सेक्शन बना दिया अपने फोरम पे, और उस फोरम पे आपने इंट्रोडक्टरी कंटेंट डाल दिया, हर टॉपिक का इंट्रोडक्टरी कंटेंट डाले, जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं वहां आपने वो कंटेंट डाल दिया। नाउ एनीवन कैन कम एंड शेयर देयर ओन व्यूज। सो वो भी एक अप्रोच है एजुकेट करने का, दैट इज द फोरम वेबसाइट जी। तो अगर फोरम इंटीग्रेट करना है तो अप्रोच डिफरेंट होगा, ठीक है। राइट? तो ये आपको अपना थोड़ा विजन क्लियर करना होगा कि व्हाट हाउ यू वांट टू एजुकेट योर कस्टमर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। ठीक है। अब ये अभी नेम चेंज करने का तरीका बता दो मुझे। नेम चेंज, अच्छा वो पेज जो पोस्ट आपने बनाया है उसका, हाँ। so here come back, you can go to the all post and there you can go and see that these are the posts you want to change. Can you see that यहाँ पे नाम ही आपने अभी तक चेंज नहीं ये किया। नेम चेंज ये कर पा रहा, मैं आता नहीं है मेरे से, तो आपने एक बताया था। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एडिट पे जाएंगे, अभी तक का काम कर सकते हैं। अभी जो मैंने प्रोसेस किया, पोस्ट में गए, ऑल पोस्ट में गए, जिस पोस्ट का भी चेंज करना है उस पे एडिट पे क्लिक किया, नाउ यू आर हियर एंड यू कैन चेंज द नेम हियर। ये हुआ, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और यहाँ पे ऐड टाइटल के बदले नाम डाल देंगे। क्या नाम डालूं, क्या कंटेंट है, क्या है इसका पोस्ट का? मैम आपने जैसे ये कवर उसको, ये है ना, इसका क्या टाइटल हो सकता है? इसको स्क्रॉल करके क्या नाम चेंज हो गया ये? अभी तो मैंने डाला, मतलब नाम चेंज अब कर रही हूँ, ये टाइटल में डाल रही हूँ 505 के बदले में 504 के बदले में ये यहाँ पे ऐड टाइटल और यहाँ ऐड टाइटल कर दिया। ये ऐड टाइटल कैसे आया, बस ये बता दो मुझे। आप जब पोस्ट पे गए थे, लेट मी शो यू अगेन, राइट नाउ आई एम अपडेटिंग इट। एक और पोस्ट आपका है जो पेंडिंग है, मैं उसको फिर उस पे करके दिखा देती हूँ। इज इट फाइन? या फिर मैं इसी को रिवाइज करके दिखाऊं? इसी को रिवाइज कर दो मैम। ठीक है, मैंने अभी सेव नहीं किया है, अपडेट नहीं किया, तो ये सेव नहीं हुआ है। सो आई एम अगेन गोइंग टू द WP एडमिन। अच्छा, WP एडमिन। सबसे पहले आप मेन अपने डैशबोर्ड पर तो जाएंगे ना, कोई भी चेंजेस करने के लिए एडमिन को तो जाना पड़ेगा। तो आप वर्डप्रेस के एडमिन पे आप हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू द पोस्ट। हियर यू आर गोइंग टू द ऑल पोस्ट। पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ऑल पोस्ट पे क्लिक करके जिस पोस्ट का भी टाइटल चेंज करना है, मुझे इस पोस्ट का टाइटल चेंज करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। और एडिट पे क्लिक करने के सबसे ऊपर जो टाइटल आता रहता है, सबसे ऊपर जो टेक्स्ट आता रहता है वो पेज का टाइटल होता है। सबसे ऊपर जो टेक्स्ट आता रहता है वो टाइटल होता है, दिस इज योर टाइटल, राइट? यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया कर्सर। अब कर्सर से मैंने इसको डिलीट करा या बैक स्पेस करके मैंने डिलीट कर दिया। इज दैट फाइन? राइट? अब यहाँ पे जो टाइटल डालना है वो मैंने टाइप कर दिया या पेस्ट कर दिया, राइट? अब इसको यहाँ अपडेट कर देंगे। बस ठीक है, मैं अब करके देखता हूँ। हाँ, ये अपडेट हो गया, यहाँ अपडेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा, आप व्यू पोस्ट करेक्ट करके देखेंगे तो अब वही टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है मैम, मैं अब करता हूँ। राइट, यहाँ चेंज हो गया। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे फिर से वापस से जाकर के देखूँ, अभी पहले पुराना पेज ये था, मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये चेंज हो गया, राइट? और जो मैंने वो डालने की बात करी थी आपका, मतलब सपोज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन नोएडा, ये टेक्स्ट है, मान लो जो मुझे इस पे इंटरलिंकिंग करनी है। दिस इज फॉर एवरीवन। जितने ब्लॉग पोस्ट आप कर रहे हैं, कम से कम एक लिंक तो आप लोग सब लोग डाल लें। एक लिंक, यू मस्ट हैव वन इंटरलिंकिंग ऑन फ्रॉम एवरी पेज। इंटरलिंकिंग मतलब अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से लिंक करना। So for example, I'm just doing interlinking from this page. यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर भी कर सकते हैं, एडिट पोस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने एडिट पोस्ट करके दिखाया था, अभी मैं एडिट विद एलिमेंटोर करके दिखा दे रही हूँ।
ठीक है, ये टेक्स्ट है। यहाँ पे ले सपोज आस्क फ्रॉम बिल्डर्स, कोई एक टेक्स्ट, एक कोई ऐसा टेक्स्ट बताइए जिसका आपका पास और कोई ऑलरेडी पेज बना हुआ हो। नहीं अभी नहीं है। सेल्स एग्रीमेंट या मैं करूंगा तो तब कर दूंगा मैं। ओके, सो लेट्स सपोज यू आर कनेक्टिंग इट विद द होम पेज, flats and luxury homes. Let's suppose you are I'm just linking, showing link how to link. You can link with any page. Right now I'm linking with the home page. आप इसको किसी भी पेज से लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी होम पेज से लिंक करके दिखा रही हूँ क्योंकि फ्लैट एंड लग्जरी होम्स कैन बी द मेन मोटो ऑफ योर होम पेज, isn't it? तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी टेक्स्ट को इंटरलिंकिंग करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देयर यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक। यहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं, यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से लिंक कर सकते हैं या यहाँ से लिंक कर सकते हैं, एंड देयर you will give the link of that page. So my page is, मैं होम पेज का डाल रही हूँ, होम पेज का URL कॉपी कर लिया और यहाँ पे ये डाल दिया और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये ना बैकग्राउंड कलर इसका जो है व्हाइट हो जा रहा है, तो ये जो माउस ओवर पे है ना, जो लिंक का माउस ओवर का सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। लिंक डालने पे जो इसका लिंक का कलर हो रहा है वो बैकग्राउंड कलर व्हाइट, मतलब लिंक टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जा रहा है। तो यहाँ एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे और एडवांस सेटिंग का जो बैकग्राउंड कलर है where you can do the more setting, जहाँ पे भी कलर से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, लिंक वैल्यू टुगेदर, बैकग्राउंड टाइप और होवर में नॉर्मल जो है वो मार्जिन पैडिंग, कलर, डिफॉल्ट कलर इज योर ब्लैक, तो टेक्स्ट वही है। हियर यू कैन सी दैट हर कलर का एक करस्पॉन्डिंग कोडिंग है, तो ये कोडिंग अगर पता हो आपको तो कहीं का भी आप डायरेक्टली कोड भी डाल सकते हैं। तो कोडिंग मिलेगा कहाँ से? जो भी जैसे इसको सेलेक्ट करके और आप जब इस पे कलर सेक्शंस पे जाएंगे तो इसका कोडिंग कॉरेस्पॉन्ड, जो भी कलर, जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वही कलर होगा। अब ऐसे ग्लोबल सेटिंग आप जाकर के गूगल से भी निकाल सकते हैं, ग्लोबल कलर सेटिंग करके गूगल में सर्च करेंगे तो सारे कलर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोड आ जाता है, तो ये कोड भी आप कॉपी कर सकते हैं। अभी जो ग्लोबल कलर है secondary color this one, text color this one, text color this one is fine, secondary color this one, primary this one. Just want to change it for the, आपका जो माउस ओवर हो रहा है उसमें जब आप लिंक डाल रहे हो तो बैक टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जा रहा है, so for that you have to change primary secondary text color। अब अगर आपको कोड पता है, डायरेक्टली आप यहाँ कोड डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही कोड सेलेक्ट हो जाएगा। अरे क्यों, कोड मिलेगा कहाँ से? कोड आपको निकालना पड़ेगा गूगल से, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जनरली आपको गूगल से नहीं जाना है तो सिंपली आप यहाँ पे भी जब माउस जहाँ पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कोड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप केवल कलर को भी सिलेक्ट करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने आप कोड भी जनरेट हो जाता है, और जनरली हम लोग यही करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी
अभी बैकग्राउंड सबका वाइट है। You have to play with the color. ये पूरा ग्लोबल है, ग्लोबल सेटिंग मतलब पूरी वेबसाइट पे जो भी अप्लाई हो जाएगा वो पूरी वेबसाइट पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप मतलब अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, बट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद वन बाय वन। कोई कलर चेंजेस करना हो तो किसी एक पे करके फिर हमेशा उसको अनडू का ऑप्शन हमेशा रहता है, तो अगर आपको वो जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप इसको अनडू कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, होवर कलर चेंज हो रहा है हमारा। होवर में वो we have to find the setting जहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है वो लिंक डालने पे चेंज हो जा रहा हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिंक डाला था और बैकग्राउंड कलर का टेक्स्ट भी व्हाइट ही हो गया था, व्हाइट बैकग्राउंड। जैसे ये ईमेल आईडी डालते हैं, हाँ, तो वो ग्रीन हो ब्लू हो जाता है, वो बैकग्राउंड व्हाइट में दिखती नहीं है वो। हाँ, तो वो वाली सेटिंग आपको खोजनी है और उसमें कलर चेंज करना होगा कि जब हम लिंक डालें तो लिंक टेक्स्ट जो हो वो ब्लू हो, ग्रीन हो, व्हाइट ना हो। व्हाइट हो जाने से क्या हो रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड और व्हाइट से वो मिक्स हो जा रहा है। So that you can you have to find from here. Primary blue, secondary black, text color this one. Link text का color text color this one. Link, right? Normal color link का white है। Normal color link डालने पे normal color क्या है, white है। I'm changing it to this one. Can you see that? अभी जैसे मैंने लिंक डाला ये सारे विजिबल हो गए, पहले वाले सारे लिंक टेक्स्ट क्या थे, व्हाइट थे। Have you seen that changes? हाँ जी, हाँ जी। अभी मुझे इसको ले सपोज ब्लू के बदले और कोई इस तरह का ब्लू रखना है या रेड में रखना है। Now can you manage it? I will try. So you can see the recording and you can see that, right? अब if I will change the text, now the link का text का color क्या हो जाएगा, this one, right? Red is so do you want to keep the red or you want to keep the blue one? Blue रखना है या red रखना है? अभी मैं blue ही रखती हूँ। You can change it. Now you know the places कहाँ पे change होना है। यहीं पे कोड, यहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर कोड आपको मिलता है तो आप वो कलर सेलेक्ट करने के बजाय कोड भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी चेंजेस देन यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट। ठीक है, अब ये अपडेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे लिंक टेक्स्ट चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आई एम चेंजिंग दिस टेक्स्ट, आई एम एडिंग द लिंक टू दैट टेक्स्ट, तो यू कैन गो एंड सेलेक्ट द एलिमेंटोर का वो सेक्शन आप जिस जहाँ पे भी एडिटिंग कर रहे हैं, we can go and select that section. We can select this section, beautiful flats and luxury homes. We can select this part and we are putting the link. This one, beautiful text, and let's suppose this text पे मैं link डालना है. I will select this part and then click on the link and I will put the link here. Link में मैंने क्या बोला कि let's suppose home page का डाला था, कोई भी लिंक डाल सकते हैं, इंटरनल लिंक डाल सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हैं। इंटरनल लिंक का मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर का पेज और एक्सटर्नल लिंक का मतलब कि बाहर की वेबसाइट।
फिर आप यहाँ पे लिंक डाल के यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई. नाउ अप्लाई करने पे ये टेक्स्ट क्या हो गया, ब्लू हो गया, and then you can click on update. If now you will see, go and refresh the page. And I think हमने यहाँ पे डाला था इस ब्लॉग पोस्ट पे. और मेक श्योर करना होगा जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट आपने कर दिया है, अपडेट कर दिया है. Can you see that? जी आ गया. अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा, जाएगा आपके होम पेज. कैन यू डू द इंटरलिंकिंग? जी. राइट. अच्छा मैम एक और दिक्कत है. हाँ. ये info@trueworkshop.com पे हम मेल भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती ईमेल पे. नहीं, ये तो आपने केवल ईमेल आईडी डाला है, आपने इस बटन का पे आपने कुछ लिंक नहीं डाला है. आपने देखो, आप जब लिंक डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, http, जब आप इसके माउस ओवर कर रहे हैं तो लिंक क्या आ रहा है, https:/truepropproperty.com/#. कोई लिंक तो डाला ही नहीं हुआ है. यहाँ पे आपको लिंक में अपनी वेबसाइट का मेल का डालना पड़ेगा. लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर. मैंने अभी उसको मिस कर दिया. आपके पेज का जो यूआरएल था, जो ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल था, वो अभी भी एलिमेंटोर 504 आ रहा है. टाइटल तो आपने चेंज कर दिया लेकिन यूआरएल अभी भी वही आ रहा है. मेटा में जाना पड़ेगा इसके लिए. हाँ, तो इसके भी यूआरएल भी आपको चेंज करना पड़ेगा. कहाँ से चेंज होगा? मेटा अगेन से. आप उस, हाँ, मेटा से या फिर ब्लॉग पेज की सेटिंग से. यू कैन सिंपली गो टू दैट ब्लॉग पोस्ट. ये ब्लॉग पोस्ट है, यू कैन क्लिक ऑन दिस एडिट पोस्ट, और उस पोस्ट का जो पोस्ट सेटिंग है, उस पोस्ट का जो सिंपल पोस्ट सेटिंग है, उसमें जाकर के आपको चेंज करना है. Here you can go and see that. Can you see that permalink Elementor 504? So this Elementor 504 के बदले if you want to put this title, ये आप पेज के URL में डालना चाहते हैं, you can copy here or you can, हाँ, by default ये आ गया, ये things to consider about. So once you have changed the URL, slug is the URL which user will see. बैकग्राउंड में तो वो page equal to 1 2 3 4 होगा, लेकिन यूजर को या गूगल को क्या दिखेगा, ये जो ब्लॉग पोस्ट का पेज है. एंड देन यू कैन क्लिक ऑन अपडेट. अच्छा. अब इस पेज का जो यूआरएल होगा वो चेंज हो जाएगा. एलिमेंटोर 504 था ना. हाँ जी. अब ये नॉट फाउंड पे जा रहा है क्योंकि हमने पेज का यूआरएल चेंज कर दिया. अब वो पुराना पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नया पेज हमने नया यूआरएल डाल दिया था. कंटेंट तो वही है लेकिन यूआरएल चेंज हो गया. अब इस पेज पे आप क्लिक करोगे, एलिमेंटोर के बदले क्या आएगा, थिंग्स टू कंसीडर अबाउट फ्लैट परचेज. दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एसईओ कि आपका पेज का यूआरएल मीनिंगफुल होना चाहिए. एंड द सेम थिंग आई हैव सजेस्टेड टू द पारदर्शी एज वेल कि आपका जो पेज का यूआरएल पेज 1 2 3 4 आ रहा है वो मीनिंगफुल, इट शुड बी द मीनिंगफुल पेज यूआरएल. यहाँ पे भी मीनिंगफुल होना चाहिए. उसको कैसे करेंगे, यू कैन रिवाइज द टुडे सेशन एंड यू विल फाइंड इट. पेज पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, पोस्ट के परमालिंक पे एडिट करना है. यहाँ पे या पर्टिकुलर पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट के अंदर परमालिंक, दिस इज द परमालिंक. हियर यू कैन एडिट द यूआरएल. आप चाहे तो परचेज हटाना चाहें परचेज हटा सकते हैं, अबाउट हटाना चाहें, कंसीडर फ्लैट परचेज. सपोज आई वांट टू रिमूव दिस अबाउट, आई कैन चेंज इट एंड देन यू कैन अपडेट इट. राइट. सो you can manage the URL. अब now if I will refresh it, तो ये अबाउट हट करके या फिर नॉट फाउंड पे चला गया क्योंकि हमने यूआरएल चेंज कर दिया, अबाउट हटा दिया था. राइट. द न्यू यूआरएल इज दिस वन. ओके, व्हाट एल्स यू हैव आस्क्ड कि ये जो बटन है वो बटन मेरा कहीं जा नहीं रहा, इन्फो पे कहीं जा नहीं रहा. इन्फो ये कहीं जा नहीं रहा. तो जहां से वेयर एवर यू हैव मैनेज दिस बटन, फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो एंड फाइंड द प्लेस. जिस भी एलिमेंट पे कोई भी चेंजेस करना है, गो एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर यू कैन एडिट दैट एलिमेंट.
तो ये बटन जहां से भी एडिट होता है वहां पे जाना है, और इस बटन का जो लिंक प्रॉपर्टी है, हर बटन पे क्या होता है, क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, तो क्लिकेबल लिंक प्रॉपर्टी जो है वो ब्लैंक है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो क्लिकेबल लिंक प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, कोई या तो किसी पेज का लिंक डालेंगे, अगर आप इसको मेल पे भेजना है तो सिंपली आप ईमेल आईडी डाल देंगे। तो ईमेल आईडी डाल लेना। हाँ, here you can go to that again Elementor पे जाते हैं, and here I'm editing from here only. I can click on edit with Elementor. ये पेज खुला हुआ है, इसी पेज को एडिट करना है, तो यहीं से हमने एलिमेंटोर कर लिया। एंड इस पेज के उस एलिमेंट पे यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स जिस एलिमेंट पे आपको चेंजेस करने हैं। दिस इज द एलिमेंट, राइट। जी अब ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, इस एलिमेंट में लिंक में आप क्या डाला हुआ है, ये हैश डाला हुआ है, इसलिए हाँ। क्लिक क्लिक होकर के कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, कोई लिंक तो डाला ही नहीं हमने। तो यहाँ पे डाल दें। तो या तो आपको यहाँ पे लिंक डालना होगा, या मेल, अगर कोई लिंक है तो लिंक डालेंगे, नहीं तो मेल है तो सिंपल मेल भी डालेंगे। तो ये ashok.pimla64 डाल दो सर। नहीं, इन्फो मतलब टू, ये जो अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसका अपने आप मेल बॉक्स खुलेगा, उस मेल बॉक्स में बाय डिफॉल्ट टू का एड्रेस यही डला रहेगा। यू वांट इट टू बी द 2 1 ना। इफ यू हैव अ डेडिकेटेड लैंडिंग पेज जहाँ पे कोई फॉर्म फिलअप करे या इस तरह का कुछ हो, तो आप उसको कॉन्टैक्ट अस पेज या वो लैंडिंग पेज का लिंक भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी तो आप सिंपल लिंक डालना चाहते हैं क्योंकि आपने क्लियरली यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है। आई मीन टू से यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। info@trueworthprof.com, right? And then you can click on update. Once you update it and go and view the page. Right? अब क्लिकेबल लिंक में क्या आ गया, आपने अपडेटेड द ईमेल आईडी info at now anyone can click here. It should be email ID. कोई पॉपअप लोड, यहाँ पे क्लिक करने पे कोई पॉपअप विंडो खुल जाए वो कर सकते हैं। ये सारे बटन का एलिमेंट है, इस बटन, ये जो बटन है उस बटन के सारे एलिमेंट्स हैं। उस बटन के टेक्स्ट को कैसा लाइन रखना है, साइज क्या रखना है, आइकन क्या रखने हैं, आइकन स्पेसिंग क्या रखनी है, टेक्स्ट का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये सारे इस बटन का एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। It's only taking the link, it's not taking the email ID. होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, it's not going to your mail.
So it's going to the home page only. It's not going to your mail. So you can put the link here. It's not going to your by default. It should be opening the email. मतलब जो आपका email उस बंदे का जो भी email सॉफ्टवेयर है वो Gmail हो सकता है, वो खुल जाना चाहिए और टू में ये email ID आनी चाहिए. But that not working here. You have that is accepting only your domain name. जो link हम लोग डाल रहे हैं केवल उस link को ले रहा है. Okay, so so if you have any contact us page, you can make them directly land on the contact us page. Do you have the contact us page? The contact Yeah, us I've not page. created a contact us page. लेकिन contact us page में क्या लिखूं? Contact us page में एक फॉर्म डालेंगे और उस पेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे ताकि कॉन्टैक्ट में कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा. Let's suppose this contact must be working here. ये कॉन्टैक्ट काम कर रहा है आपका, ये फॉर्म काम कर रहा है, ये फॉर्म है ना, जैसे कैन यू सी दैट WP फॉर्म, फॉर्म ID इक्वल टू 15. तो ये WP फॉर्म एक प्लगइन है, उसके थ्रू आप ये फॉर्म मैनेज कर रहे हैं. तो ये WP फॉर्म में जाके इसकी एडिटिंग, इस फॉर्म की एडिटिंग जो करनी होगी वो WP फॉर्म में जाके करनी होगी. बट आई होप कि ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं. इसके में पॉपअप में then we can go to the link setting and click to load pop-up. Let me see if the form is opening here. आइडियली इसको आप या तो किसी पेज पे चले जाए या कोई फॉर्म फिलअप ओपन हो जाए या फिर मेल पे चला जाए. ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं. इट्स गोइंग टू ओनली पेज. कोई भी किसी पेज पे तो सेंड कर पा रहे हैं बट ये इट्स नॉट ओपनिंग द फॉर्म हियर. नाइदर फॉर्म ओपन हो रहा है ना ही मेल पे जा रहा है. अच्छा, बटन टाइप टेक्स्ट, बटन टाइप info सक्सेस वार्निंग. text contact us at this one. link में we can put the link is perfectly fine. किसी भी पेज का लिंक आप यहाँ पे डाल पा रहे हो लेकिन ईमेल आईडी या फॉर्म ओपन नहीं हो रहा. It's not accepting this short code of form. ओके, फिलहाल के लिए देन फिर आप केवल पेज पे ही भेज सकते हो. बट आई विल शो यू दैट इट शुड बी डायरेक्टली गो टू योर ईमेल आईडी. उनका जो आपके यूजर हैं वो यूजर जो भी ईमेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा दैट इट शुड ओपन. दैट आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क. राइट नाउ इट्स ओनली एक्सेप्टिंग द ईमेल आईडी.
right now it's only going to the link. So no worries, I will show you how you can send it to the email. Particular हाँ मतलब ऐसा है ना कि suppose somebody contacts, then we should know के whom to contact back for giving the answers to their questions. No, so in that case either it should be going to a particular page. अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेज बनाइए, उस पेज का नाम रख दीजिए कॉन्टैक्ट अस। उस पेज में ये फॉर्म यूज कर लीजिए, जो आपका ये फॉर्म है वो फॉर्म उसमें आप यूज कर लीजिए, और उस पेज का लिंक यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ये फिर आपको पूरी ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, या फिर डाला भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लिक होने पे वो कॉन्टैक्ट अस पेज खुल जाए और वो वहां पे फॉर्म फिलअप करे। अब इस फॉर्म की सेटिंग क्या है, इस फॉर्म में जो भी सेटिंग करनी है वो आप WP फॉर्म में जाके सेटिंग कर सकते हैं कि कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो मेल कहाँ रिसीव करनी है। तो इसकी इस फॉर्म की जो सेटिंग होगी वो आपके WP एडमिन में जो प्लगइन्स होंगे WP फॉर्म, क्योंकि ये WP फॉर्म से मैनेज हो रहा है। आप शॉर्ट कोड देखोगे किसका है, WP फॉर्म का है, इसको शॉर्ट कोड कहते हैं, ये शॉर्ट कोड WP फॉर्म का है। तो आप WP फॉर्म में जाएंगे और वहां पे उस फॉर्म की सेटिंग कर देंगे। WP एडमिन में गए और यहाँ पे फॉर्म, WP फॉर्म, कैन यू सी दैट WP फॉर्म? हियर यू कैन सी ऑल फॉर्म्स, जितने फॉर्म्स है वो आपको, जब तक आपने जितने भी फॉर्म बनाए हैं वो देख सकते हैं, और जिस फॉर्म को भी आपको मैनेज करना है। सो देयर इज वन फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, अभी यही फॉर्म यूज हो रहा है, यही इसका कोड है, शॉर्ट कोड WP फॉर्म ID = 15। यही वाली फॉर्म हमने देखा यहाँ पे यूज हो रखा है, यही फॉर्म यूज हो रखा है ना। तो अब इस फॉर्म में जो भी सेटिंग करनी है कि इसमें कौन सा फील्ड होगा, कितने फील्ड होंगे, फील्ड का नाम क्या होगा, कलर क्या होगा, कोई फील्ड हटाना है, डालना है, सेंड मैसेज में क्या होगा, सेंड मैसेज पे कहाँ मेल जाएगी, ये सारी की सारी सेटिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी, इसमें इसको एडिट करना होगा। अच्छा, राइट। तो इस या तो इसी फॉर्म को आप किसी भी पेज में जहां पे भी ये फॉर्म यूज करना है ये शॉर्ट कोड यूज करना होगा। जहां कहीं पे भी इस तरह का फॉर्म आप डालना चाहते हैं वहां पे ये शॉर्ट कोड यूज करना होगा। तो एक पेज, अपने पेज पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, पेज पे एक नया पेज क्रिएट करेंगे, न्यू पेज का नाम जो टाइटल डालेंगे या नेम डालेंगे वो कॉन्टैक्ट अस, और जो भी आप डालना चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस या जो भी इस तरह का नाम डालना चाहते हैं डाल देंगे। और उस पेज पे एक छोटा सा एक लाइन लिख करके ओके नीड हेल्प, वी विल कॉल यू बैक इन 24 आवर्स और समथिंग, जो भी एक डालना चाहते हैं मैसेज डाल देंगे, और उसमें ये फॉर्म का शॉर्ट कोड डाल देंगे। उस पेज पे इस फॉर्म का शॉर्ट कोड डाल देंगे, और उस पेज पे पूरा का पूरा एक पेज बन गया जिसमें कि आपने लोगों को बोला कि आप कांटेक्ट क्यों करना चाहिए, कांटेक्ट करने से उनको कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, और एक फॉर्म हो गया। अब उस पेज का लिंक यहाँ पे डाल देंगे, इस पेज का लिंक यहाँ पे जाकर के जैसे हमने होम पेज का लिंक डाला था वैसे ही trueworthproperty.com/contactus ये वाला लिंक डाल देंगे। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्टस पेज पे चला जाएगा, और कॉन्टैक्टस पेज पे जाएगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। अब ये फॉर्म का डेटा कहाँ कलेक्ट करना है, इस फॉर्म को कैसे रिस्पॉन्स करना है, इस फॉर्म को कैसे मैनेज करना है, वो हम लोग यहाँ WP फॉर्म में देखेंगे। तो WP फॉर्म हमारा है नेम, ईमेल ID, मैसेज, सेंड अस। अब इसमें आपको कोई और फील्ड ऐड करनी है तो हम फील्ड ऐड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग मैनेज करनी है तो यहाँ से मैनेज करेंगे। नोटिफिकेशंस कहाँ जाएगी, अभी एडमिन ईमेल पे, यानी जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका वर्डप्रेस का जो एडमिन का ईमेल ID है वहां पे जा रहा है। वर्डप्रेस वेबसाइट जो आप मैनेज कर रहे हैं उसका जो एडमिन का ईमेल ID है वहीं पे जाएगा ये फॉर्म, तो बाय डिफॉल्ट अभी वहीं पे जा रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन मैसेज में क्या डिस्प्ले कराना है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग। तो एडमिन का ईमेल ID आपको पता है क्या है, वो चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ आप चेंज करना चाहें, कौन सी ईमेल ID डालनी है बताइए। सेंड टू ईमेल एड्रेस, तो सेंड टू ईमेल एड्रेस क्योंकि अभी आपने सेटिंग नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे क्या उठा लिया है। मैं आपको वो कर दूं मैसेज। हाँ आप अभी वो चैट कीजिए, मैं वो ईमेल ID डाल दूंगी, तो जो फॉर्म फिलअप होगा उसकी मेल जो चली जाएगी वो आपके उस पे चली जाएगी। Are you texting right now? Are other people are finding it useful? कर दिया मैम, कर दिया। बाकी लोग को ये समझ में आ रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? कर दिया मैम आपको। Okay, nice, thank you. So this is the email ID you have given and you want कि कोई भी फॉर्म फिल अप करे तो इस ईमेल ID पे जाए। आई थिंक यही ईमेल ID आपका एडमिन का भी है।
हाँ जी, नहीं ये एडमिन का नहीं है, ये इसका है क्या नाम नहीं, वर्डप्रेस पे जो अभी मैंने लॉगिन किया था वो इसी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है। अच्छा, वर्डप्रेस पे जो मैंने लॉगिन किया वो आपका एडमिन का ईमेल आईडी है। ठीक और है, पहले भी वो एडमिन पे ही ईमेल आईडी जा रही थी, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उठा रहा था, अभी आपने ईमेल आईडी डाल दी है। अच्छा, राइट। अब ईमेल का जो आपको अब ना मेल रिसीव होनी है, मतलब सेंड टू ईमेल आईडी, कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो उसकी मेल कहाँ जाएगी, इस ईमेल आईडी पे जाएगी। हाँ जी, इस पे जाएगी। जब भी आपको मेल जाएगी उसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, न्यू एंट्री कॉन्टैक्ट फॉर्म है। आपके पास जो मेल रिसीव होगी उसका सब्जेक्ट लाइन आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। राइट। कैप्चा होगा या नहीं होगा, फ्रॉम ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी से जाएगी, तो अगेन आपके एडमिन वाले ईमेल आईडी से जाएगी। रिप्लाई टू ईमेल आईडी, अगर आप चाहें तो अपना रिप्लाई टू ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ईमेल का मैसेज अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज, ये आपको ही मेल मिल रही है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ऑल फील्ड, यानी जो फॉर्म है उस फॉर्म में जो डेटा एंट्री होगा उस डेटा का वैल्यू यहाँ पे आपको एज अ मेल मैसेज मिलने वाला है। ठीक है, ईमेल मैसेज क्या मिलने वाला है, ऑल फील्ड, जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसके सारे फील्ड का वैल्यू आपको मिलेगा। आप रिप्लाई टू ईमेल आईडी डिफरेंट रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, नो वरी। तो अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ, केवल मैंने ईमेल आईडी किया है एंड अभी देन मत कीजिए। हाँ, सेव कर दिया आपने, इसको सेव कर दिया। आप इसी फॉर्म को आप और भी ज्यादा करना मैनेज करना चाहते हैं, ये तीनों चीज है। जनरल के थ्रू आप और फील्ड ऐड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस मैनेज कर सकते हैं, कंफर्मेशन मैसेज आप मैनेज कर सकते हैं, ये सारा चीज आप आपकी एक्सपेरिमेंट वीडियो देख के करेंगे। मैं कर लूंगा। हाँ, तो ये जो WP फॉर्म है ना, अभी हम लोग WP फॉर्म पे काम कर रहे हैं, फॉर्म का सेटअप, फॉर्म का फील्ड, फॉर्म की सेटिंग, फॉर्म की मार्केटिंग, फॉर्म, तो ये पूरा पूरा फॉर्म मैनेजमेंट करने का, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है उसको मैनेज करने के लिए WP फॉर्म है। WP ये जितने भी नॉन डिजेबल्ड है वो पेड फीचर्स है, उसको भी आप रहने देंगे। जो आपके इनेबल्ड फीचर्स है उसी में आप ये करेंगे। राइट। तो ये आपने सेव कर दिया। अब आपके फॉर्म को कोई भरेगा, लाइक लेट्स सपोज आई एम फिलिंग अप दिस फॉर्म, देन you should be receiving message at your mail. Right now you can go and check that whether you have received the mail or not. Can you see that? Need help? Message, thanks for contacting us. This we will be in touch with you shortly. मैम अभी आया नहीं, आ जाएगा। हाँ, वो आप 1-2 मिनट में चेक कर लेंगे, आ जाएगा। राइट। तो ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को आप किसी भी पेज के साथ एम्बेड करके आप उस फॉर्म को के लिए एक अलग पेज बना सकते हो और उस पेज का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, लेट मी सी लिंक काम करेगा। लिंक टू I'm just checking कि वो डायरेक्टली मेल आया तो नहीं अभी? नहीं आया ना, अभी नहीं आया। अच्छा, आपने अपडेट भी तो करना होगा। अभी मैंने अपडेट किया है, ये मैंने सेव कर दिया था। एक फॉर्म मैंने फिर से फिलअप किया, बाकी लोग भी फॉर्म फिलअप करके देख सकते हैं रिसीविंग मैसेज और नॉट।
this text will work. Mail to. Have you received the mail? नहीं मैम, अभी तक नहीं आई है। आप अपना स्पैम और वो ट्रैश स्पैम वगैरह भी चेक कर लेंगे। Okay, बाकी लोग, no one is asking any questions, so got the fair idea कि आज के लिए क्या क्या करना है, आज जो इतना इनपुट मिला उस पे कैसे वेबसाइट पे और अपडेट कर सकते हैं। Now it's working. Can you see that? एक मिनट। All of you, have you seen that whenever you want कि आप email ID का लिंक डालना चाहते हैं, the link is mail to colon, it's mail to colon email ID. Whenever you want कि उसको क्लिक करने पे, all of you are here, बाकी सब लोग यहाँ पे हैं। मैं यही हूँ मैम, कहीं नहीं गया। Okay. Yes, ma'am. Yes. So here you want कि directly mail बटन के क्लिक करने पे डायरेक्टली मेल आपके पास आनी चाहिए। There you have to put mail to colon email ID, right? So here your button text is whatever text you want to keep, and link will be mail to colon your email ID. And in that case, when someone will click, जब भी कोई इस पे कोई क्लिक करेगा, we have updated it and refreshed it. Whenever someone will click, तो उसके कंप्यूटर पे, उसके लोकल सिस्टम पे जो भी ईमेल सॉफ्टवेयर है that will open. मेरा मैकबुक है तो मेरा जो ईमेल सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। तो कैन यू सी दैट यहाँ पे एंड 2 में क्या आ रही है ईमेल आईडी जो हमने वहां पे डाला था। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टेस्ट लिख करके आई कैन सेंड एंड दिस मेल गो, लाइक वन ऑफ द वे दैट यू कैन डू। अनदर वे यू कैन क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पेज, यू कैन पुट द लिंक देयर, और अनदर वे यू कैन हैव दिस एम्बेड फॉर्म directly. You can click, someone click here and that embed form will open. तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो मेल वाला चला गया। एम्बेड फॉर्म का कॉन्टैक्ट पेज आप आराम से बना सकते हो, और एम्बेड फॉर्म के लिए भी आपको जो फॉर्म आपने डिजाइन किया है, जो भी फॉर्म WP फॉर्म या निंजा फॉर्म, कोई भी प्लगइन यूज करके आपने फॉर्म बनाया होगा, उस फॉर्म का एम्बेड कोड आप यहाँ पे जनरेट करते हैं। जब आप उस फॉर्म पे जाएंगे, there is a option to generate the embed code, and there you can generate the embed code and put the embed code on the button. बटन पे वो embed code embed कर होगा। Can you see this embed? And embed select existing pages. किस पेज पे embed करना है, उस पेज का URL हम select कर लेंगे किस पेज पे मुझे embed करना है। जैसे कॉन्टैक्ट अस, हमारा एक कॉन्टैक्ट का बना हुआ ऑलरेडी, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जैसे मुझे embed करना है, तो लेट्स गो। तो वहां पे ये बाय डिफॉल्ट embed कर देगा। और अगर आपको embed कोड जनरेट करना है तो पेज सेलेक्ट करने के बजाय यू कैन जनरेट द embed कोड एज वेल। embed your form manually. Yes. मैम आया तो नहीं अभी तक। अभी तो आपके मेल में फिर कुछ दिक्कत है, क्योंकि मैंने मैनुअली भी किया है। मतलब अभी हम लोगों ने दो तरह से दो मेल किए हैं, एक तो फॉर्म फिलअप भी किया है और सिंपली मेल पे भी गया है।
Have you noticed that यहाँ पे क्लिक करके हमने मेल से भी आपको भेजा है। या फिर मेरे ईमेल आईडी में मेरा जो ईमेल आईडी मैंने यूज किया है वो ईमेल आईडी ऑलरेडी यू कैन से दैट फुल है, उसमें जीमेल पे अब सेंडर रिसीव नहीं होता है, शायद इस वजह से हुआ होगा। यू कैन ट्राई इट विथ योर, आप अपने ही किसी दूसरे ईमेल आईडी से आप ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सेट अप योर ईमेल। तो आज हम लोगों ने ब्लॉग को नेक्स्ट में, ब्लॉग में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड टेक्स्ट, बैकग्राउंड लिंक, बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर्म पे कैसे या ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मेल कैसे भेज सकते हैं, दैट वी हैव सीन। और कॉल टू एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी कंटेंट पीस आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको प्रमोट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा नेक्स्ट वीक तक का काम है। Are you going to work on that? Yeah. Yes. तो आज के लिए अभी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। और कोई कंसर्न क्वेश्चन था जो कि ये रिकॉर्डिंग शेयर कर लोगे मैम? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। जी जी। ये किसका है? WP फॉर्म। गुरुमुख सर, आर यू देयर? Hello, ma'am. हेलो हेमांगी। Hemangi, yeah. Sorry, Yes, I sir. was busy in Ganpati and everything, so I couldn't attend from the beginning. और अभी भी मेरा I was traveling. अच्छा मैम, मैंने आपको मैसेज डाला था ग्रुप पे. Did you see that? I started. I thought I'll start working now. तो suddenly वो मैसेज मेल में था कुछ and I couldn't work on it. मुझे समझा ही नहीं क्या Your करना. site is experimenting technical issues since your website is built in the feature. So you can share either you can share the screen with me. I will help you with that. I think ये जो आपका वेबसाइट का वर्जन आपको अपडेट करना है। अच्छा, तो क्या करना है? आप ये देखो, WordPress caught an error with your plugin SiteKit by Google. तो आप ये क्या करोगे, जैसे ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो SiteKit by Google के प्लगइन की वजह से आ रही है, राइट? अच्छा। आपका WordPress का वर्जन 5.2 है और ये वर्जन SiteKit by Google के साथ मतलब कंपेटेबल नहीं हो रहा है। तो you have to do two things, right? To do two things कि आपका WordPress का वर्जन 5.2 है और लेटेस्ट वर्जन WordPress का चल रहा है 5.8। तो आप अपने WP एडमिन में जाकर के जहां भी WordPress को अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, अगर you might be finding, not might be, you must be finding a notification here कि WordPress का नया वर्जन आया हुआ है तो आप इसको अपडेट कर लो। तो WordPress के मैं I start putting that WP मेरा मेल क्या बोलते डोमेन नेम एंड WP एडमिन का जो URL डालती हूँ ना टू स्टार्ट वर्क, तो वो आता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके यू चेक योर मेल, फिर वो चेक किया मेल तो वो वैसा था, तो फिर मैं कर ही नहीं पाई कुछ भी, तो लॉगिन भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं हो रहा। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा ना। हाँ, मैंने अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो मैंने आपके उसी स्क्रीनशॉट को मैं देख रही हूँ। इन दैट केस यू हैव टू, जो आपका होस्टिंग प्लेस है जहाँ पे होस्टिंग है, देन अगर आप WP एडमिन में लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, अगर लॉगिन कर पा रहे हो तब तो सीधे WordPress वर्जन अपडेट कर लोगे 5.2। जैसे अभी इनका WordPress वर्जन लेटेस्ट है 5.8, आपका WordPress वर्जन 5.2 है। तो अगर लॉगिन कर पा रहे हो तो सीधे WordPress का वर्जन अपडेट करोगे। अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो यही काम आप अपने होस्टिंग से जाके करोगे। आपका जहाँ पे डोमेन और होस्टिंग है वहाँ पे आपने WordPress इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे भी WordPress वर्जन को अपडेट करने का ऑप्शन आता है। तो देयर मुझे GoDaddy है मेरा होस्टिंग। हाँ, GoDaddy में जाएंगे। GoDaddy में जहाँ पे होस्टिंग में आप अपनी वेबसाइट की लिस्ट देखेंगे, जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे होंगे उस वेबसाइट पे जाकर के WordPress को, अगर बिल्कुल आपने अभी काम ज्यादा कुछ नहीं किया है तब तो फ्रेश इंस्टॉल, मतलब पहले वाले को डिलीट करके नया फ्रेश इंस्टॉल करेगा। अपने आप वो लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करेगा। अगर वेबसाइट में सिग्निफिकेंट काम किया हुआ है और यू डोंट वांट टू यूज दैट, तो इन दैट केस यू कैन, वहाँ पे WordPress का वर्जन अपडेट करने का ऑप्शन आता है, वो आप अपडेट करें। राइट। सो दिस इज और अगर पुराने वाले वर्जन, जैसे जो आपकी पुरानी वेबसाइट है और वहाँ पे वर्जन अपडेट करके तब लॉगिन कर रहे हो, तो SiteKit by Google ये जो प्लगइन है उसको अपडेट करना होगा। वो प्लगइन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा,
आपके वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन इंस्टॉल्ड है उसमें साइटकिट बाय गूगल जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ओके ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ एंड आई विल अपडेट इफ एनी। अगर लॉगिन हो जाता है तब तो वर्डप्रेस से कर लोगे, नहीं होता है तो होस्टिंग से जाकर के रीइंस्टॉल फ्रेश इंस्टॉल कर लीजिए। शुरुआत में क्या है ना, आप जो चीजों को जितनी बार रिपीट करोगे दैट यू विल फाइंड इट मोर कॉन्फिडेंस ऑन दैट। तो आप फ्रेश इंस्टॉल कर लेना, यू विल गेट दैट पार्ट रिपीटेड। तो फिर मुझे वो सब गूगल साइट वगैरह वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? हाँ फिर से, तो उससे क्या होगा ना, सारा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा। ओके फाइन। तो फिर मैं ना पहले हमने 2021 का थीम यूज किया था ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट फिर मैं दूसरा ही थीम यूज करके स्टार्ट कर दूंगी जिसमें डायरेक्ट मैं एलिमेंटर यूज कर सकती, बिकॉज़ आई वर्क इन एलिमेंटर, तो आई फाइंड वेरी कंफर्टेबल विद इट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपने किया हुआ है वो उसमें आ रहा है लेटेस्ट करंट थीम जो है वो 2021 वर्जन 1.4 है। तो आपने कुछ भी नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, लेकिन अगर आपको थीम का आइडिया है, अगर नहीं भी आइडिया है फिर भी आप अपीयरेंस के अंदर थीम में जाकर के, थीम लाइब्रेरी में जाकर के you can go and explore and see the preview and see the details and then you can decide to कौन सा थीम आपको करना है। So initially I would suggest कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन का टाइम लेकर के आप थीम जो भी सिलेक्ट करते हो, तो नेक्स्ट एक वर्जन 1 पूरी वेबसाइट आप उसी थीम में बना। आपकी मैम आवाज ब्रेक हुई, मुझे समझा नहीं बीच में क्या बोला आपने। I've said कि whatever theme you are selecting, initially you can do little bit of experiment and research and invest some time, minimum 30 minutes, maximum 1 day, not more than that. Right? Once you have decided the theme for next 1 month, for next 1 to 3 months, till you are not creating your version 1 to the satisfactory level, you keep working on the same theme. Okay. Right. So it's very easy to keep changing the theme, then you will keep changing the theme, but you will not understand the internal structure of the theme. But when you are keep working on the same theme on different aspects, then you will understand the internal structure of the theme. Then next, whenever you will change the theme, it will be easier for you to create your website in new theme. Okay. Right. So starting से 2-3 चीज का you can keep 2-3 things in mind. So you can go to your WP, you can go to your hosting, fresh install WordPress. Purana, you can just go and delete the old WordPress, fresh install WordPress, and if you will, it's very easily visible. If you can just give a little bit of attention, there is an option to update the plugin and WordPress and theme. So there is an option to automatic update and manual update. Select it automatic update. Okay. So select what will happen whenever because the error right now you are getting is you might have selected the manual update, and manually you are not updating, neither updating the WordPress, nor updating the theme, nor updating the plugins. So all these are the old version and it's creating incompatibility. When you will select the automatic update, automatically whenever newer version will come, and you will open your website, it will connect with the server, automatically it will update to the newer version. So then the compatibility issue will not come, or very rare it will. Okay, got it. Okay. Yeah. And then you will select the theme and work on that theme for at least for next 1 month. Okay. Thank you, ma'am. Let me know if you face any other issue. Sure. Thank you. Okay, nice. Welcome. What else? Any other question, concern, doubt? A few pointers you have mentioned. I think AK sir has mentioned that something you have mentioned, out of 13 points completed for submitted version 1, 3 points are still balanced. 3 points, which 3 points are still balanced? मैं उसको कर दूंगा कंप्लीट, 2-3 पॉइंट बच गए हैं. Okay. So let's complete that and let me know if हाँ बिल्कुल. Okay, you have shared the activated done. Okay, sidebar you have not done. Sidebar is not compulsory. If you feel that the website में sidebar मुझे रखना, I have seen your website is sidebar is already working. आपकी website में sidebar है. You see that sidebar, what we say sidebar. होम पेज पे sidebar डिजाइन इश्यूज की वजह से नहीं भी रहा है तो it's perfectly fine. आपके ब्लॉग सेक्शन में this is called sidebar.
अच्छा इसको साइड बार कहते हैं। अच्छा तो साइड बार को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यू कैन रिमूव दिस मेटा पार्ट, you can have the categories displayed here. You can, if you don't want to keep the archive, you can remove the archive. The recent comment, if you want to keep, you can keep. A recent post, if you want to keep. Search option, you want to keep. The rest of the elements which you want to keep, you can add it. If you want to remove it, you can remove it. Yes, you have to work on the sidebar, but your sidebar is already activated. You have to make it better. So you can go to the appearance. Appearance के अंदर widgets. Appearance के अंदर widgets will give you the place where you can manage your site. Okay, ma'am. All right. So done but unable to modify blog setup. Now it's done. Now you will be able to manage. हाँ मैं करूँगा, आपने दिखा दिया, मैं करूँगा. ठीक है. Contact us page. What info give? Contact us page में आप आपसे contact करने का जितना भी channel open करना चाहते हैं, all the channel you can mention on the contact us page. Right. So in contact us page, in 2 lines, you can introduce that if someone will contact you, what benefit they will get. Why anyone should contact you, how anyone should contact you, what benefit they will get. You can set the expectation right. Okay, you will fill up the form, we will get back to you in 24 hours. If you want prompt response, you can contact us at this WhatsApp number, or if you want our consultancy, you can contact at this mobile number. So here you can give all the आपको contact करने का क्या क्या तरीका है, क्यों आपको contact करें, कॉन्टैक्ट करने पे क्या रिस्पांस मिलने वाला है, कितने दिन में रिस्पांस मिलने वाला है, आपके सोशल मीडिया का, आप कहाँ सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो, आपके सोशल मीडिया से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कहाँ पे जाए, कोई फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो फॉर्म उसमें एम्बेडेड होना चाहिए, अगर आपका फिजिकल लोकेशन है और उसमें आप मैप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो मैप डाल सकते हो, अगर आपका कोई कस्टमर केयर नंबर है, आपका कोई कस्टमर केयर का टीम है, आप उनकी फोटो, उनकी ईमेल आईडी, उनका लिंक्डइन डाल सकते हो. So contact us is that you are giving opportunities for the two-way communication. So far, your entire website is one-way communication. You are just putting the content. Your user is not responding to you. In contact us page, you are giving them a window where they can reach you out. ठीक है. Right. तो आप अपना head office, branch office, sales office, like अगर जो important team members हैं उनका contact details. गूगल मैप्स को डालना है, गूगल मैप्स को डाल सकते हैं, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डाल सकते हैं. अगर आप 4-5 अलग अलग सर्विसेज देते हैं तो 4-5 अलग अलग सर्विसेज के लिए किसको किसको कांटेक्ट करना है वो डाल सकते हैं. इफ यू वांट टू गिव देम द अपॉइंटमेंट्स ऑप्शंस के वहाँ आपसे वो अपॉइंटमेंट ले सकता है तो उसके लिए आप कैंडली का लिंक डाल सकते हैं, कैंडली का इम्बेड करके डाल सकते हैं. सो इट्स टोटल अप टू यू कि आप क्या क्या कॉन्टैक्ट पे डालना चाहते हैं. ठीक है. Right. So I think I have taken care of all the things, and Gurumukh sir has not here. Will this be an option for automatic? What are the implications? Anyone has experience, please. So I would suggest whenever you are getting the notification to update your WordPress software, go and update it to the most recent version. वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो लेटेस्ट होना चाहिए, थीम जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका अप टू डेट लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, और जो आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी लेटेस्ट वर्जन होता है. दैट इज द आइडियल वे टू हैव योर ओन वेबसाइट. राइट. आई थिंक इफ गुरुमुख सर इज देयर देन यू गॉट द आंसर कि अगर ऑटोमेट है तो जनरली हम लोग ऑटोमेटिक करके छोड़ देते हैं, अगर ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअली भी कर रहे हैं तो आप मैनुअली सबको अप टू डेट ही रखें. मैम देयर इज अ मैसेज फ्रॉम Bluehost. There's a message on my email from Bluehost to upgrade my PHP version. Update your PHP version to keep my website secure. PHP वाले पे अभी करेंगे. उनका मैसेज आया है कि प्लीज अपडेट योर PHP version to keep your website secure. जनरली अपडेट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो पुराने ओल्ड वर्जन पे को हैक करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए लोग अपडेट करते रहते हैं. सो वर्डप्रेस इज ऑलमोस्ट इन PHP. पूरी की पूरी वर्डप्रेस जो वेबसाइट बनी हुई है, वर्डप्रेस का जो फ्रेमवर्क है वो PHP का ही फ्रेमवर्क है. तो मुझे कुछ करना है इसके अंदर में? नहीं, अभी आप PHP पे नहीं करेंगे. अगर जिस दिन भी करते हैं तो फिर आपको पूरी वेबसाइट एक बार फ्रेश चेक करनी होगी. वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं. यू कैन डू इट. नेक्स्ट ऑप्शन ही होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है. तो यू कैन डू इट. जो भी ऑप्शंस आते हैं उसको आप थोड़ा रीड करके थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्टली नेक्स्ट ही होता है. ठीक है.
and make it a thumb rule कि जितने सॉफ्टवेयर हैं वो आपका up to date version मिल जाए. Okay, can we conclude the day? I will share the recording as well. Thank you, ma'am. Okay, welcome, welcome, welcome. And looking forward for more questions concerned in the WhatsApp group, so that in the next session we will take care of as much question as possible. Right, thank you, ma'am. Okay, thank you, and looking forward for the better version of your website in next weekend. Okay, bye, take care. Bye, ma'am.